Hi guys, hope you all are doing fine. This is a call to action to all the Snap aspirants out there. कईयों को शायद ना पता हो Snap क्या चीज है. That's why this session is important for you. I'm going to tell you all about Snap and the most important thing, how to improve your scores in this test. So what is Snap? It is conducted by SIU, Symbiosis International University. If CAT is a marathon, SNAP is a sprint. So you had better train like a sprinter. उसमें हम CAT में सिखाते हैं भाई मैराथन दौड़ने की तैयारी करो. Here you have got to just sprint. 60 minutes, 60 questions. It's all about accuracy and speed. So this is conducted by Symbiosis International University, and if you get a good percentile, you can get admission to two of the most prestigious institutes of the country, that are SIBM and SCMHRD. अब ये होगा कैसे, करना क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, डिजाइन क्या है, आई एम गोइंग टू जस्ट रन यू थ्रू एवरीथिंग. ये क्या है भाई, test of speed and accuracy I already mentioned. So 60 minutes, 60 questions. It's like 1 minute per question. भाई इतनी भी क्या भागा दौड़ी की क्या है, ऐसी क्या जल्दी क्या है आपको. But if you look at the divisions, there are 3 divisions, 3 sections. One is general English. CAT में हमारा VARC कहलाता है. Here it's general English. But this is much easier than CAT. Only 15 questions, that too not very long ones. छोटे छोटे questions here and there, प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू. The only problem is speed. So if you get stuck with the wrong questions और अच्छे अच्छे questions छोड़ दिया आपने, तो स्कोर नहीं आ सकता है. कितना स्कोर लाना है अभी उस पे भी आएंगे. एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये इनका एक लंबा सा सेक्शन होता है, सेकंड वाला. ओके, सो उसमें 25 क्वेश्चंस, एंड द थर्ड वन इज क्वांट्स, DI, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, और भी 2-3 टॉपिक्स मिलते तो डाल देते ये उसमें भी. और इतने सारे डाल करके कितने हैं क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस है भाई. ऐसी कैसी मारा मारी है इतना सारा सिलेबस कवर करके, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट दीज फ्यू क्वेश्चंस. 60, दैट्स इट. 60 मार्क्स, दैट्स इट. और भाई यहाँ पे अगर मार्किंग स्कीम बात करें, +1 for every good question and -0.25 for every wrong. तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, you have to leave the bad questions, take the good questions, the good, the bad, the ugly. इसके बीच में आपको डिसाइड कर लेना है, वो भी बहुत फास्ट. So you need presence of mind. यहाँ पे पहले ये समझो, what is the best thing about this test? The thing that I like, 3 attempts are allowed. So 3 attempts में you can take 2, you can take 3. The higher score will be considered, and इनके तीनों के dates मैंने यहाँ दे दिए हैं, December 6, December 14, December 20th. So as you can see, November 30th को इस साल CAT है, CAT 2025, and then you can straight away get started with SNAP की तैयारी. इनफैक्ट नवंबर में ही आपको SNAP की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. और जो लोग अभी करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड. You just need to go and check on our website. आपको वहां पे हमारे SNAP and MAT ZAT के कोर्सेज नजर आएंगे. So it's always good to start a little early, क्योंकि जो अभी मैं आपको वर्बल में बताने वाली हूँ ना, इंग्लिश में ग्रामर और वोकैबुलरी, you will not be able to build it up in 15 to 20 days. So ये जान लो आप. Anyway, और ये जो आप फॉर्म भरोगे, तो इसका जो एडमिट कार्ड आता है, हर टेस्ट के 5 दिन 6 दिन पहले ऐसा एडमिट कार्ड आपको आ जाता है. और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, स्नैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको 2 या 3 मॉक्स मिलते हैं. ये जब आपका फॉर्म भर लेंगे आप, उसके बाद somehow you get qualified to take the mocks and all, ये सिस्टम होता है. You can just go and check on the official website. PYQs जरूर से कर लेना आप स्नैप के. बट एनीवे, अभी हम पहले क्रिस्प पॉइंट्स पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे. 45 to 50 questions with good accuracy. So 60 questions doesn't mean you have to eat all of them. बुफे में जाते हो तो क्या सारा खाना खा लेते हो आप? नहीं. यू जस्ट टेक अ राउंड एंड यू सेलेक्ट. मुझे फिश पसंद है, मैं सबसे पहले तो इस पे अटैक करूंगा, उसके बाद मटन पे अटैक करूंगा, पनीर और सब्जियों की तरफ तो जाना ही नहीं है मुझे. राइट. सो क्रिस्प पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वजन वाला पॉइंट यही है, सेलेक्ट गुड क्वेश्चंस. आपको कोई वहां पे गोली नहीं मार देगा अगर आपने वहां पे 5-7 क्वेश्चंस छोड़ दिए. दिस इज नॉट NMAT, दिस इज नॉट GMAT. All right. So 45-50 questions with good accuracy. और अभी 45-50 questions पे कितना परसेंटाइल बनता है, कौन से कॉलेज में आपका हो सकता है, वो भी अभी थोड़ा सा दिखाऊंगी मैं. Start with your strong section. स्नैप एक ऐसा टेस्ट है, बहुत ही इस मामले में आप अंदर जाओ, स्नैप मतलब स्नैप टेस्ट के अंदर जाओ, एंड देन यू स्टार्ट विथ व्हाटएवर सेक्शन यू वांट. इंग्लिश स्टार्ट करो, आप रीजनिंग स्टार्ट करो, आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसमें मार्क्स बिल्ड अप करो. इट्स नॉट नेसेसरी कि हर सेक्शन, जैसे कैट में भाई दरवाजा बंद हो गया, VARC कर लिया आपने, 40 मिनट में आपने अच्छे अच्छे नहीं उठाए तो दरवाजा बंद, यू कैन नॉट एस्केप. ऐसा कुछ नहीं है.
सो डू वट एवर यू वॉन्ट इन दो 60 मिनट्स। वो पूरा 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 आपका प्लेग्राउंड है, आपने स्मार्टली खेलना है, कौन सा बॉल कौन सा बैट सब देख लेना आपने, ठीक है। गेट डन विथ ऑल द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। आई मीन दिस इज व्हाट आई वुड डू। हर सेक्शन में मेरा कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहेगा, एंड ऑफ कोर्स वर्बल में तो सारा कुछ ही लाइक जैसे अच्छा है। तो व्हाट आई वुड डू इज आई स्टार्ट विथ वर्बल। वर्बल में स्टार्ट करके आई वुड जस्ट गो क्विकली, पहले एक राउंड ऑफ शॉपिंग जिसमें आई टेक अप ऑल द गुड द इजी क्वेश्चंस, ओके। एक दो जिसमें डाउट है रफ शीट हैंडी रखो, वहां पे लिख दो, कम बैक फॉर रिव्यू। ऑल राइट, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप अपने जो एलआर में चले जाओ, आप क्यूए में चले जाओ, जस्ट गो थ्रू ऑल द इजी क्वेश्चंस, फास्ट क्वेश्चंस जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे आप ये चीज याद रखना, ठहरो एक मिनट, ये वाला तो पॉइंट बताया, हाँ, आइडेंटिफाई एंड स्किप बैड क्वेश्चंस, ये पहले भी बता चुकी हूँ, ऑल द इजी क्वेश्चंस एंड ऑल। हाँ, सेक्शन रिलेटेड टिप्स में समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू डोंट नीड टू डू ऑल द क्वेश्चंस, चाहे वो क्यूए हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो। यू हैव टू पिक द वंस दैट यू कैन हैंडल विद इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में आपको नजर आएगा ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी हमने देखा 60-60 है, सो इट वर्क्स आउट टू जस्ट 1 मिनट पर क्वेश्चन। इंग्लिश के तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं दैट यू कैन डू इन 15 to 20 seconds, save time over there. अभी I'm just going to give you a little bit of ज्ञान related to the sections. क्वांट्स और DILR में मुझे बहुत ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन जितना मैंने टॉपर्स से सुना है वो मैंने कंपाइल किया है आप लोगों के लिए। सो क्वांट्स में पीपल स्वेयर बाय दीज थिंग्स, ओके। दो टॉपर्स से मैंने स्पेशली बात की थी, दे पास्ड आउट लास्ट ईयर फ्रॉम SIBM। उनका कहना है अरिथमेटिक 7 to 8 questions, easy to moderate, okay, you can do that. Algebra 3 to 4, geometry 3 to 4 questions, and they mentioned, both of them mentioned that coordinate geometry is something that you should definitely learn. फिर एक और चीज उन्होंने बोला था, I'll tell you, मैं लिखना भूल गई, वेन डायग्राम का 2 and 3 करके कुछ उन्होंने मुझे समझाया था कि वेन डायग्राम जरूर से कर लेना बोलो बच्चों को आप, क्योंकि वेन डायग्राम तो आएगा ही आएगा, एंड दैट कैन बी सॉल्व्ड वेरी वेरी फास्ट। जैसे इंग्लिश में हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो आता ही आता है, इतना गारंटीड है, ठीक है। एनीवे, मॉडर्न मैथ्स ये एक चीज है जो सबसे, मैंने यही सुना है कि मॉडर्न मैथ्स इज स्कोरिंग ओवर हियर। यू डोंट नीड टू गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ दैट, ओके। आपको सरफेस लेवल जानना जरूरी है। सरफेस लेवल बोले तो यार फॉर्मूला बेस्ड जितना होता है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, 6 to 8 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। इन्हीं पे आप खेल सकते हो, इन्हीं पे आप स्कोर कर सकते हो। DI में it's more speed based than depth, straightforward questions हैं, so आपको 30 seconds to 1 minute में दिखेगा कि ये solve हो रहा है। However, if you find that you're not able to kind of find your way around one question, आपको समझ जाना है कि 2 मिनट लगा के भी आप उस question में finally फंसोगे ही फंसोगे। So it's better to just say जय माता दी and move out of that particular question, okay? और ये ज्ञान point आपने ले लिया, you need to solve smartly, okay? Reasoning, reasoning में ये कुछ points हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी देयर आर 2 parts in that, verbal reasoning and non-verbal reasoning. Verbal reasoning is what? Syllogism होगा, उसमें conclusions, assumptions, explicit assumptions and implicit assumptions and cause and effect, ये सारी चीजें होती हैं। कहां से करोगे आप प्रैक्टिस? Just come over to my classroom, okay? So we have got paid classes as well as free YouTube sessions. I will be giving you extensive practice on all these topics. अब जैसे हमारा NMAT का कल एक क्लास है और उसके बाद स्नैप का उसके 1-2 दिन बाद ही इस तरह से हम रखेंगे। सो पेड वाला जो है, यू जस्ट नीड टू गो टू द डैशबोर्ड, सब्सक्रिप्शन उसमें चेक करो, स्नैप, ज़ैट, एनमैट सारे कोर्सेज अप है, ओके। जस्ट गो अहेड विद दैट। एंड वर्बल के लिए यू रियली नीड टू कम टू मी गाइज। अभी बताती हूँ और एक रीजन क्यों आपको मेरे पास आना चाहिए। एनीवे, सो वर्बल एंड नॉन वर्बल का मैंने बता दिया आपको। वर्बल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स आते हैं, पढ़ा दूंगी मैं आपको ये सारे। रीजनिंग में और बिगेस्ट स्कोरिंग एरिया जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है, टॉपर्स ने, पजल्स है, कोडिंग, डिकोडिंग है, सीरीज, सिलोजिज्म्स, तो उसमें इसमें किसी में भी डाल लो। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस टू बिल्ड रिफ्लेक्स स्पीड, ओके। आता है जनरल इंग्लिश, हमारा तोता। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कैट? अब मैं इसमें जरा ना सांस लेके आराम से प्यार से अच्छे से आपको बता सकती हूँ। तब तक तो मैं दूसरों से लिया हुआ ज्ञान ही दे रही थी। अभी आप यहां सुनो, इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर कैट, you can just stay assured you will be able to do the parajumble very easily, okay? आपको आरसी नहीं आते हैं लंबे लंबे, अगर मान लो आया भी, कभी उनका मूड बिगड़ गया, आया भी तो 2 पैराग्राफ्स टाइप के इस तरह से आएंगे, छोटे होंगे, you will be able to do those very easily. Even if you have not been preparing for CAT, it's perfectly fine, you don't need to worry. ये टॉपिक्स हैं,
ओके पैराजंबल्स बहुत आसानी से हो जाते हैं, स्टार्टिंग सेंटेंस एंडिंग सेंटेंस दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली, बीच के 4 आपको शफल करने हैं। वोकैब, idioms and phrases. भाई मेरे प्यारे बच्चों, I am telling you, you will not be able to build this up in 15 to 20 days because if you decide कि मैं कैट देने के बाद फिर उठूंगा, 2 दिन ब्रेक लूंगा, फिर उसके बाद उठूंगा सोचूंगा स्नैप अब तैयारी करनी है, you will not be able to do it. And snap is very heavy on vocabulary. आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के करो, बाय द वे ये मैं भी करवाऊंगी आपको सॉल्व, PYQs, ठीक है, विद ऑल द डिटेल्स। PYQs के बेसिस पे एक कंपाइलेशन भी बनाया है मैंने, स्नैप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो कंपाइलेशन भी करवाने वाली हूं अपने क्लासेस में, एंड ट्रस्ट मी द इनसाइट्स दैट यू विल गेट विद दोज क्वेश्चंस are like worth noting anywhere, not because I'm giving them, ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूं मैं, it's just because those are important, and वो last 10 years का जो उसके basis पे जो compilation है, जो insights हैं, those will help you with the verbal section very very much. आप देखोगे आपको सारा समझ में आएगा, हाँ ये even when it comes to vocabulary, I have got a compilation of about 300-400 words, Barron's list से, Norman Lewis के word, Norman Lewis का word power made easy से, और आपके लास्ट 10 इयर्स के पेपर से उठाए हुए वर्ड्स हैं, आई हैव कंपाइल्ड देम एंड आई एम गोइंग टू गिव दोज आउट टू यू, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वोकैबुलरी आपको पता है इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आप अभी स्टार्ट करोगे, तब भी स्टार्ट करोगे तो वोकैब इज गोइंग टू टेक अवे योर स्लीप, राइट। इडियम्स काफी आसान होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से 3-4 सेशंस हम करेंगे, जो कॉमन वाले जो आते हैं ना, जो जनरली स्नैप टाइप्स हैं, वो करवा दूंगी मैं आपको। वैसे स्नैप टाइप कुछ भी नहीं होता है, दे कैन गिव यू एनीथिंग अंडर द सन। ग्रामर में एक चीज, इनफैक्ट 2 चीजें आप याद रखो, एक तो स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगा ही आएगा, ये मतलब आई हैव सीन ऑलमोस्ट एवरी ईयर, कर लेना अच्छा है, राइट। उसके अलावा देयर आर सम टॉपिक्स वो मैं करवा दूंगी, बट the most important thing for SNAP, NMAT, ZAT grammar, there is a compilation of mine that is pretty famous among students. It's called Super 150 of Grammar. That is again based on the last 10 years ka grammar questions of all these 3-4 tests. So when I have taken all those points and kind of compiled those into this 150 wala course, what happens is, एक बार आपने ये कर लिया और उसमें बीच में बहुत प्रैक्टिस दिया है मैंने, एक बार आपने ये कोर्स कर लिया, you can stay assured आपके questions जो आएंगे वो उसी में से आते हैं। मतलब ऐसा फील होता है कि जैसे मैंने अपना कंपाइलेशन दे दिया था और उसी में से उन लोगों ने लिखे हैं क्वेश्चंस। फाइन, ग्रामर का हो गया। कंप्लीट द सेंटेंस आते हैं बहुत सारे, बट कंप्लीट द सेंटेंस ऐसा नहीं होता है कि लाइक पैराग्राफ का फ्लो वाला नहीं होता जैसे कैट में होता है। नो, कंप्लीट द सेंटेंस इज बेस्ड ऑन ग्रामर। while Rahul waited outside and kind of kept biting his nails, Anjali went out for a walk. तो कुछ ऑपोजिट दिखाएगा। सो द ग्रामर, ग्रामर का फ्लो लेकर के यू गेट दीज, एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा ग्रामर जब आप मेरे साथ सीख लेंगे, दीज विल बी एक्चुअली वेरी इजी, वेरी डुएबल। एनालॉजी आपको पता है क्या है? एनालॉजी जस्ट लाइक मिल्क इज टू कप, वाइन इज टू वॉट। तो मिल्क को आप कप में डाल के पिएंगे, वाइन को आप गॉबलेट में, शैलिस में, किसी भी चीज में डाल के पिएंगे। सो दैट इज द वे यू हैव टू मैच। ओके, ये है आपका जनरल इंग्लिश का पोर्शन। इट्स डैम इजी, डैम डुएबल, more so when you do these things with me, because we are going to have lots of fun. So it's just an invitation, open invitation, आ जाओ आप मेरे साथ। एंड आपको जो ग्रामर का बोला मैंने, वो क्या आपका बोला मैंने, इसके अलावा और क्या, और भी अगर आपको, हाँ राइट, आई फॉरगॉट टू मेंशन, जो आपको मैंने रीजनिंग के बताए थे ना, वर्बल रीजनिंग, वो सारे करवा देती हूँ मैं। ऑल राइट, सो यू कैन स्टे अश्योर्ड, ये आपको मेरे पास मिल जाएगा। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मॉक्स। सो चाहे वो कैट हो, जैट हो, एनमैट हो, कुछ भी हो, मॉक्स। स्नैप में स्पेशली इट इज सो इंपॉर्टेंट to take at least 12 to 15 mocks, because it's all about speed and accuracy. अगर मैं वही 60 questions आपको देके बिठा देती हूँ और मैं कहती हूँ चलो राजा बेटा ये लेकर के बैठो और आप इसको 2 घंटे 3 घंटे में मुझे सबमिट करो, you will get all 60 questions correct. It's not a big deal. That's the level of Snap. Moderate, upper moderate. Okay, but the main problem is speed. Okay, so you need to build up that reflex. You need to train your brain to do it very fast, just like a sprinter, as I said in the beginning. तो 12 से 15 मॉक्स देने। मॉक्स आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे डैशबोर्ड पे
we are going to give out SNAP and NMAT mocks also, full length mocks, proper mocks. Okay, so besides the classes, you're going to get these, and 12 से 15 आपने देना है. After each mock, please identify some questions on which you wasted your time. Then you have to understand कि अच्छा ये ना मेरा, this is not my cup of tea, छोड़ ही देता हूँ मैं इसको, रहने दो, अगली बार दिखेगा तो इसको skip करूंगा. मान लो स्पीच ऐसा है, स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको प्रॉब्लम है, you can either work harder on it, sit with me more and get it clear, or you can just decide to leave it, but आपको identify करना पड़ेगा what your Achilles heel is. उसके बाद skip instinct. Skip instinct क्या है? You have to learn how to skip. Even the toppers 99 points some वाले they swear by this कि भाई सारे questions करना कोई जरूरी नहीं, I'm going to leave at least 5 to 7 questions जो मेरा टाइम खा रहा है. लास्ट में यहाँ पे इस स्लाइड पे मैंने दिया है आपको 60 minute time allocation strategy. This is just a sample. Okay, you can do it the way you want. I have just given here this. First 20 minutes LR, you can start with LR. Then next 15 minutes VARC, उससे ज़्यादा VARC में really नहीं चाहिए. Last 25 minutes QA. You can change it. Like if I start taking the test, I would start with VARC. So 15 minutes for VARC, then I would move on to LR. So 20 minutes to LR and then 25 minutes for QA. If I'm exceptionally good in LR, जो कि मैं नहीं हूँ, तो मैं 20 को 15 कर दूंगी and QA को 25 से 30 बढ़ा दूंगी. वैसे मेरे लिए तो 2 घंटे भी QA के लिए काफी नहीं है. Okay, so मेरी बात तो छोड़ ही दीजिए आप. चलिए. So we are done with the mocks part. I hope it's clear. And the golden rule. Do not get stuck. I mean, I cannot emphasize this enough. If you can't crack it in 30 seconds, please लिख लो या तो sheet पे या mark it for review and please move on, because otherwise it's really going to eat away your time. आप देख करके उसके बाद घड़ी पैनिक ही हो जाओगे. In the end, marks कितने लाने हैं? सब कुछ कर लोगे आप. Target क्या रखना है? Okay, 50 is what fetches you SIBM. Like over the last 2-3 years, if we check, 22 का थोड़ा सा मुश्किल था, 23 का it was a little down, the level was down. और आपको ये पता ही होगा कि आपका जो percentile calculate होगा, that depends on the level of the test. मुश्किल हुआ तो आपका थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा. ओके, अगर आसान हुआ तो आपका कट ऑफ ऊपर चला जाएगा. सो SIBM के लिए you need 50. 49 to 50, 99.8, 99.9. वैसे I have seen people getting calls even at 98.5. But to be on the safe side, you have to do this. 44 marks आपके ये लास्ट 2-3 साल में 99.5 पे बन गए हैं. So 100 बात की एक बात, स्कोर आपको ये सोच करके चलना है कि भाई सिंपल टारगेट आपको रखना है 42 प्लस. 40 प्लस नहीं बोलूंगी मैं, 40 प्लस बोले तो फिर क्या हो जाता है कि 40-41 पे अगर रुक गया, यू आर नॉट गोइंग टू गेट SIBM एंड SCM HRD. सो 42-43 रखो. वैसे टारगेट करो 48-49, हर्ज क्या है उसमें. एम फॉर द स्टार्स, यू विल गेट समथिंग अ लिटिल लोअर देन दैट. सो आई थिंक आई हैव गिवन यू ऑल द पॉइंट्स. हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको जरूर दिखाना चाहूंगी मैं. जस्ट हैंग इन देयर. I'll take you to this. ये हमारा वेबसाइट है iquanta.in का. If you just open this, here you've got all courses. You can see there. I have clicked on that all courses. अब आप यहाँ all courses में देखो CAT 25 है, 26 है. You have to just go here, other MBA exams. All right. And on the right hand side here you can see. On the right hand side, ZAC 25, all packages, and MAT 25, SNAP 25, all packages. So these days there is a flurry of excitement on our website, on our dashboard, because we are announcing many new courses. अब वो चाहे हमारे CAT के लिए है, क्रैश कोर्स है, CAT के लिए IIM ABC चल रहा है, अर्ली 26 के लिए है, प्लस ये आपके OMETs किनको कहते हैं, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, जो आपके ये सारे हैं. सो बहुत सारी चीजें हो रही हैं. A lot of activity, lot of enthusiasm is there. So please visit it and see for yourself what you want. Other than that, I have given you all the important points जो आपको चाहिए in order to reach 99 percentile वाला level. Get started, guys. And yes, as I said, verbal, that is general English. You will not be able to do grammar and vocabulary very late. So it's time to start now. Go ahead, think it out. And I look forward to seeing you in the classes. Thank you.